So we were Good studying. afternoon, sir. Hanji. So good afternoon. So we were studying Sturm-Liouville boundary value problem. So in that direction we studied regular, then regular and periodic Sturm-Liouville problem, and then singular singular problem. So now I am taking one special kind of singular problem in which you have unbounded domain. So instead of interval AB, you have unbounded boundary like 0 to infinity. So that is an special example. So a problem of the form, firstly I am taking similar example of regular problem. So I am using same notation uh, as used in text of Puddington and Levinson. So you can write unknown with u or y. So in that problem, px is 1, q is q, and rx is also 1, and where x belongs to a to b. So with boundary conditions, at a, instead of that constant alpha 1, you have cos alpha, that is also a constant. Then derivative at a. ओके, सो कांस्टेंट की बजाय कुछ और भी कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। पहचान क्या रेगुलर का, सो यू हैव इंफॉर्मेशन एट ए एंड सेकंड इंफॉर्मेशन इज एट बी, सो यू बी and u dash p sin beta equal to 0. So this problem is regular one where a interval a to b is finite, q is continuous, it can be 0, and we have studied such kind of problems in detail. So they have rich structure, they have orthogonal eigenfunction, their eigenvalues are real. So similar kind of example I'm taking, let's start now an example of singular problem. So we consider a singular problem that is when b equal to infinity. So you have lu equal to minus u double prime plus सेम प्रॉब्लम, ठीक है, जो ऊपर लिखा है. सो x बिलोंग्स टू 0 to infinity. So you don't have right boundary, so you have one condition at left boundary, that is u0 cos alpha plus u dash 0 sin alpha equal to 0. अब राइट में इन्फिनिटी मतलब ये बाउंड्री नहीं है, तो आप कंडीशन राइट में नहीं लिख सकते. So this problem so this is singular
Sturm Liouville boundary value problem for half line, and Q is continuous. तो इसमें एक मेजर रिजल्ट है इस एग्जांपल के लिए, दैट इज नोन एज लिमिट पॉइंट एंड लिमिट सर्कल थ्योरम. सो जो मेजर फैक्ट है, यानी कि अब हमने अब प्रूव क्या करना है, सो वी विल डिस्कस दैट this problem has a solution, or you can say has a square integrable solution. So this fact is known as this famous theorem, that is this theorem is known as the limit point or limit circle theorem. I am only stating this result. Proof of this result required some knowledge of complex variables as well as function analysis, and itself this is a quite big proof. So we won't prove it, we will just discuss it. So let L जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है मेरा, and let phi and psi be two solutions of Lu equal to lambda u, which satisfy the conditions phi 0 lambda equal to sine of alpha, psi 0 lambda equal to cos of alpha, then the derivative phi dash at 0 with the parameter lambda, this is minus cos alpha, and psi dash this is sine alpha for some alpha that ranges from 0 to pi. Then there is a function denoted by m lambda, so that for every lambda, R में नहीं है, C में भी हो सकता है. So this is most general theory. So this lambda can be complex number. Then y x lambda equal to phi यानी कि एक phi और psi का कॉम्बिनेशन लो आप, ठीक है, phi plus m times psi is an square integrable solution of Lu equal to lambda u
या आप पूरा लिखना चाहो तो जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम जो है इसका सलूशन, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सलूशन। तो फाई और साई क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है विद दे सैटिस्फाई दीज कंडीशंस, देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन m so that if you take combination phi plus m times I, this is a square integrable solution of lu equal to lambda u। जो आपका बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है उसका सलूशन होगा। स्क्वायर इंटीग्रेबल मतलब फंक्शन क्या है, एक क्लास ऑफ फंक्शन है जिनका आप स्क्वायर करके इंटीग्रल करोगे तो वो फाइनाइट आता है। इस क्लास को जो बिलोंग करेंगे फंक्शन, वो वाले फंक्शन है ये। रियल एनालिसिस में इनको, इस क्लास को हम बोलते हैं L2 क्लास, स्क्वायर इंटीग्रेबल ऑन 0 to infinity। Rather than writing this statement, you can also use symbol. So there is a solution, there is solution, that solution belongs to L2 0 to infinity। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिंपल रही लग रहा है, बट प्रूफ इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, सो यू नीड टू गो इनटू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो आइडिया थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ, सम रिमार्क्स आई विल राइट दैट आर आल्सो आउटलाइन। तो पहला तो जो ये रिजल्ट है, जो फैक्ट है जो हमने लिखा है, दैट इज दिस इज नोन एज लिमिट पॉइंट और लिमिट सर्कल theorem। So that theory is given by mathematician Weil। और जो इसमें एक फंक्शन आ रहा है, एक जो m है लिखा मैंने, द फंक्शन m lambda in the theorem, this is called the Weil Tishmarsh is another mathematician, so this is Weil Tishmarsh m function। तो जो फर्स्ट पॉइंट है प्रूफ का, कि जो हमने जो फाई और साई हैं आर सॉल्यूशंस ऑफ LU equal to lambda u, they satisfy the condition that stated earlier, 0 lambda equal to sine alpha, psi 0 lambda equal to cos alpha, then phi dash 0 lambda equal to minus of cos alpha, then psi dash 0 lambda, that is sine of alpha। So these boundary conditions, these conditions are equivalent to, अगर आप इनको इकट्ठा करके लिखोगे, इकट्ठा कर सकते हो ना, जैसे फर्स्ट इनको क्लब करें अगर हम दोनों को, इनको तो पहले में साइन है, इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को साइन से कर दो, दैट विल बी 0। तो क्या लिखोगे इसको, कॉस अल्फा फाई 0 लैम्डा प्लस साइन अल्फा फाई डैश 0 लैम्डा इक्वल टू 0। अगर सेकंड कंडीशन को लिखना चाहो आप, साइन अल्फा साई
साई वाली सेकंड वाली, यानी कि इसको साइन से कर दो फर्स्ट को, सेकंड को कॉस से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा अब और दोनों प्लस है ना। सो सब्ट्रैक्ट करोगे तो राइट हैंड साइड 0 बनेगा। सो कॉस अल्फा साई डैश so this the combination LU सॉरी कॉम्बिनेशन जो y से डिनोट किया है हमने, y इक्वल टू 5 प्लस m लैम्डा साई x लैम्डा, दिस सॉल्व्स LU इक्वल टू लैम्डा u। अब देखिए जो बाउंड्री कंडीशन है वो एक साइड में तो है, दे रखा है आपको, लेफ्ट में तो है, ठीक है, जीरो से जाके आप आगे जा रहे हो up to infinity, so you have a boundary condition here but you don't have boundary condition on right side। तो इसमें क्या करते हैं, एक एक बाउंड्री कंडीशन सेट करते हैं प्रूफ में, सेट डाउन द बाउंड्री कंडीशन एट राइट हैंड साइड, दैट बाउंड्री कंडीशन इज cos बीटा ub प्लस साइन बीटा u डैश b इक्वल टू 0, और जो बीटा है दैट इज 0 टू पाई, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट बीटा है आप ले लो, पाई से छोटा है, पाई से स्मॉल, तो so set a boundary condition on the right hand side, so set down the boundary condition on right side। तो फिर आपने फर्दर प्रूफ में हम क्या करते हैं, अब बस स्किप कर रहा हूँ। सो जो सोल्यूशन है इससे और बाउंड्री कंडीशन से, ट्राई टू फाइंड m, solving boundary condition, use given relation, then try to find m। तो अगला पॉइंट क्या है, डिटरमाइन m लैम्डा, और जो यहाँ इसको ये भी लिख सकते हैं m, इसके अंदर बीटा और b दोनों होंगे, तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ उसका, जो m लैम्डा की वैल्यू है इसका बाय सम मैनिपुलेशन, दैट इज cot बीटा 5b लैम्डा प्लस 5 डैश b लैम्डा डिवीजन cot बीटा, ऊपर साइन कॉस आएंगे, डिवाइड करके कॉट बन जाएगा ये, साई बी लैम्डा प्लस साई डैश बी लैम्डा। सो फॉर ए फिक्स लैम्डा एंड बीटा, फिक्स लैम्डा एंड बी, सेट z इक्वल टू कॉट ऑफ बीटा, z कॉम्प्लेक्स में, तो जो m की वैल्यू बन जाएगी माइनस ए जेड प्लस बी डिवाइड बाई सी जेड प्लस डी, ठीक है, कि दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, इसको जेड लिख लिया हमने, ठीक है, तो समथिंग मल्टीप्लाई बाई जेड प्लस समथिंग डिवाइड बाई, इसको जेड बोला है कॉट बीटा को। तो ये जो फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्रैक्शनल ए जेड प्लस बी डिवाइड बाई, सो एम इज ए फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें बहुत कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रूविंग इट। सो दिस इज ए फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल z, तो एज बीटा रेंजेस फ्रॉम 0 to पाई, सो
अब ये ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, जेड है कॉट है तो ये दैट जेड बिलोंग्स टू होल आर, यानी कि आपने बीटा को 0 to पाई ले लो तो कॉट की वजह से जो जेड होगा दैट रेंजेस ओवर होल रियल लाइन. So for fixed lambda and b, the image of m, जो ये फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, the image of m is a circle in complex plane. यहीं से आ रहा है वहां पे जो आपका थ्योरम का नाम है लिमिट पॉइंट लिमिट सर्कल. So the image of this m is a circle. So next प्रूफ में जो टास्क है, सर्कल है उसका सेंटर निकालो. सेंटर क्या होगा, उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, ठीक है. तो जो फाइनली जो सर्कल्स मिलेंगे, सो वी विल गेट ए सीक्वेंस ऑफ, we will have a sequence of nested circles. नेस्टेड सर्कल कैसे होते हैं, नेस्ट कैसे बनते हैं, नेस्ट जैसे एक सर्कल ऐसा है, कुछ ऐसा है, ऐसे एक के ऊपर एक नेस्टिंग, जैसे पक्षी घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं. सो वी गॉट ए सीक्वेंस ऑफ नेस्टेड सर्कल्स which must either shrink to a limiting point, या तो वो श्रिंक होके जब आप लिमिट लगाओगे या तो वो पॉइंट बन जाएगा, और या दोनों बनते हैं इसमें, पॉइंट बनेगा या, यानी कि आप सर्कल का लिमिट लगाओ उनका तो लिमिटिंग पॉइंट बनेगा या लिमिटिंग सर्कल बनेगा. दैट्स व्हाई थ्योरम इज नोन एज लिमिट पॉइंट एंड लिमिट सर्कल. भी सर्कल थे, बहुत सारी फैमिली है, तो या तो एक सर्कल बन जाएगा लिमिट केस में, या वो फिर पॉइंट बन जाएगा, सिंगल पॉइंट. तो जो लिमिट होगा, दैट लिमिट दैट m इन्फिनिटी, जो मैंने m लिखा पहले, m इन्फिनिटी डिनोट द लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट इन द केस ऑफ लिमिट पॉइंट केस. तो लिमिट पॉइंट बनता है तो उसको लिमिट पॉइंट लिख देंगे. अगर सर्कल बन रहा है तो उसको हम क्या लिख देंगे, सर्कल. So let m infinity denote the limit point in the limit point case, and a point on the limit circle. अगर सर्कल बनता है ये तो सर्कल पे एक पॉइंट है, एंड ए पॉइंट ऑन द लिमिट सर्कल in the limit circle case. तो फाइनली जो फाइनल स्टेप होगा, जो 5 प्लस m इन्फिनिटी जो उसका लिमिट होगा, दे विल बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, and they solve, and this combination solve the singular problem. And this will complete the proof. So I'm just going back. So what theorem says that to solve a singular problem on unbounded domain, you need to define one artificial boundary condition
at point beta, where beta is less than pi. So you define a right boundary condition. Then the combination y equal to phi plus m lambda psi, this solves the original problem. ये हमने प्रूफ करना है. तो प्रूफ के अंदर पहला पार्ट क्या होगा, m बनाओ, आप m बनाइए यूजिंग बाउंड्री कंडीशन. m बना के जो m बनेगा दैट इज ए फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. द इमेज ऑफ दिस m इज ए सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. सो नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड दैट फैमिली ऑफ सर्कल्स. जो सर्कल बनेंगे वो निकालिए आप. तो सर्कल पे जब लिमिट लगाओगे तो या तो वो पॉइंट बनेगा या वो सर्कल बनेगा, लिमिटिंग सर्कल. दो केस हैं. दैट्स व्हाई दिस थ्योरम इज नोन एज लिमिट पॉइंट और लिमिट सर्कल केस. Then that limit m infinity phi plus m infinity psi solves the singular problem. That theorem says. So don't worry. You may study somewhere in detail. This theory is the part of spectral theory. So just as an example on unbounded domain, I have considered the theorem. So you need to understand this statement only without proof. So this article completes our chapter Sturm-Liouville boundary value problems. सर इसमें बेसिकली हमें जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन हम बनाएंगे उसके बेसिस पे हमें सर्कल या पॉइंट मिलेगा ना. हाँ, उसके बेसिस पे. मतलब बीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा. हाँ हाँ हाँ. तो फिर सर वो तो यूनिक नहीं आएगा ऐसे. तो मतलब ये वैसे है, एक एग्जांपल ही है उस प्रॉब्लम का. अगर आप ये कंडीशन चेंज करोगे तो कुछ और बन जाएगा फिर. दैट्स व्हाई आई हैव written in previously that this is just an example of singular problem. ओके. ठीक है, एक एग्जांपल है ये. प्रूफ आप देखना जो नोट्स आई विल अपलोड इन नोट्स. सो इन नोट्स I have given complete proof. Interested reader can read there, but that proof is about, I think, 5 pages. So that is a 4 or 5 pages proof. So any query about this topic? Any query about boundary value problem? So today only 11 people are there.